everywhere. I, I, Mitali Sharma, sending you my warm greetings on this auspicious occasion of Basant Panchami. Namaskar everyone. On the behalf of Modi School, I welcome you all here to a very special event. Basant Panchami is celebrated on the fifth day of Magh month Shukla Paksh every year, as it is believed that goddess Durga gave birth to goddess Saraswati. This occasion also marks the beginning for preparations for Holi, which is celebrating after 40 days of Saraswati Puja. It is also Shri Panchami in South and is dedicated to Saraswati, who is considered as the goddess of knowledge, learning, music, and art. On this day, women clad in yellow traditionals, offering flowers, children participating in programs, and family sharing prasad. Clay idols of goddess with a crescent moon on the bow riding swan or seated on the lotus flower, with flowers, fruits, and sweets placed as offering before it can be seen in various puja pandals. Customary khichdi, mixture of rice and lentils, is traditional prasad for Saraswati Puja. May Goddess Saraswati bless you all with the supreme knowledge. May the rewarded occasion of Basant Panchami bring the wealth of knowledge to you. May you be blessed by Goddess Saraswati and all your wishes come true. I would like to invite Miss Raina Jain from class 10th to please Goddess Shraddha with her melodious prayer. शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ तू स्वर की देवी ये संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे तू स्वर की देवी ये संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे हम हैं अकेले हम हैं अधूरे तेरी शरण हम हमें प्यार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे हाथों में वीणा मुकुट सर पे साचे तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे हाथों में वीणा मुकुट सर पे साचे मन से हमारे मिटा के अंधेरे हमको उजालों का संसार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ Euphonious Rainadi, very well sang. Dance is a form which can please any god and can depict every unsaid word. So, I would like to call Shrishti Bhattacharya from class 11th for expressing her devotions.
Splendid, Shrishti. Yet, Divya Sharma is making an effort to share some knowledge about Basant Panchami and goddess Saraswati. ऋतुराज वसंत, श्रेष्ठ, आकर्षक, मनमोहक, सोने के समान चमकते सरसों के फूल, हर और पुष्पों की बहार, जौ और गेहूं की खिलती बालियां, आम के पेड़ों में बोर, रंग बिरंगी तितलियों का झुंड, बोरों के मधुर स्वर, न अधिक ठंडक न अधिक गर्म, मनमोहक मौसम, वसंत अर्थात प्राकृत सौंदर्य की पराकाष्ठा, शिक्षा और कला की देवी मां सरस्वती की विशेष आराधना आज वसंत पंचमी को ही की जाती है। आज की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। मां सरस्वती के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए मां के सभी भक्तों को सरस्वती पूजन, वसंत पंचमी और ऋतुराज वसंत की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। Today, I, Divya Sharma of grade 8, stand before you to deliver a speech on this very auspicious occasion, Vasant Panchami. Vasant means spring and Panchami means fifth. It is a festival that falls on the fifth day of Hindu lunar month of Magh, marking the end of winters and coming of spring. Known in India as the king of all seasons, spring not only brings warm relief from the cold of winter, but it is also the time when the mustard crop blooms, flower of yellow, a color that symbolizes knowledge, light, energy, prosperity, and peace. It is considered an auspicious time to begin new ventures. Vasant Panchami has one more significance for our whole Modi family. Our school got an existence on this pious day, which is just like a direct enlightenment by Goddess Saraswati. At last, I would like to conclude my speech by saying that may the revered occasion of Vasant Panchami bring the wealth of knowledge to you. May you be blessed by Goddess Saraswati and all your wishes come true. Thank you and happy Vasant Panchami. Thank you, Divya. It was actually worth listening to you. Now, after this special moment, I would like to call Prakriti Kalampriya of 11th Science for her beautiful dance performance. Thank you, Dee, for this devotional and sacred moment. Before moving to our next special event, Kavyanjali, I pray to Goddess Saraswati for you that this great occasion of Basant Panchami may bring huge wealth of knowledge and you may be blessed by Goddess Saraswati. Wish you a joyful Basant Panchami. Now, I would like to request Miss Ayushi Soni to take over. Thank you. धन्यवाद मिताली।
हृदय में, मस्तिष्क में, हर रंग में, सुगंध में, अरुणोदय के स्वर्ण में, चहुं और दिगंत में, उसके यौवन स्वच्छंद में, मेरी लेखनी के छंद में, वसंत है, वसंत है, वसंत के वसंत में। सुप्रभात, वसंत पंचमी, माँ वीणा पाणी का अवतरण दिवस, प्रकृति के सौंदर्य का चरम उत्कर्ष, महाप्राण निराला का जन्मदिवस, मन में शहीद हुए सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि और मानव मन की आह्लादित प्राकृतिक तादात्म्यता, कारण अनेक और उत्सव एक। इस सुहावनी भोर में मोदी संस्थान की छात्राएं आज लेकर आई हैं काव्यांजलि। मैं आयुषी सोनी, जो कि आज कुमार विश्वास का किरदार निभा रही हूँ, आज के इस हास्य और व्यंग्य से सराबोर इस सम्मेलन में यहाँ उपस्थित आप सभी का हृदय की अतल गहराइयों से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। इस विशिष्ट कार्यक्रम के विधिवत प्रारंभ करने से पूर्व मैं प्राचार्य मैडम श्रीमती निशि राणा का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिनकी प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से हमने इस काव्यांजलि का प्रारूप तैयार किया। एक बार पुनः आपकी गरिमामयी उपस्थिति को सादर नमन। विश्वास कीजिए कि आज की यह काव्यांजलि आप सभी सहृदयों के हृदयों को भावों से परिपूर्ण कर देगी, आप सभी को रसासिक्त कर देगी। तो आइए इस विशिष्ट प्रस्तुति काव्यांजलि में आप सभी का स्वागत करने के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तप्त मौसम को ठंडी हवा मिल गई, आप आए यहाँ हमको ऐसा लगा जैसे कष्टों को कोई दवा मिल गई। सच मित्रों, आज की इस प्रातःकालीन पुनीत वेला में आप सभी की उत्साहित उपस्थिति और खिले हुए चेहरे देखकर मैं अदिति सोनी निश्चिंत हूँ कि आज यहाँ रंगों की बरसात होगी, खुशियों से मुलाकात होगी, रिश्तों में आएगी नई बहार, छाएगी सब ओर अमृत की फुहार। आज चारों ओर केवल आनंद बरसेगा, मेरा दावा है कि हंसी को कोई नहीं तरसेगा। तो पुरजोर करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए हमारे विद्यालय की प्रतिनिधि कवि और कवियत्रियों का, जिन्होंने ख्यातिनाम कवि और कवियत्रियों की रचनाएं से उत्सव को सिर्फ आप ही के लिए सजाया है। इस काव्यांजलि के बहाने हंसने और हंसाने के लिए हम सभी को बुलाया है। न गिनकर देता है, न तौल कर देता है, ईश्वर जब देता है तो दिल खोल कर देता है। सृजन सृष्टि का सुंदरतम अनुभव है। कविता अगर भावों का शाब्दिक सृजन नहीं तो क्या है? सृजनात्मकता की आधारभूता वाणी की देवी माँ वागीश्वरी शारदे के चरणों में भाव पुष्पांजलि अर्पित करने हेतु मैं सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कुमारी अदिति अर्थात कवियत्री प्रियंका राय जी को। धन्यवाद भाई कुमार। नमस्कार, आप सभी का सादर स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। माँ वीणा पाणी के श्री चरणों में शब्द को समर्पित करने का आदेश हुआ है। आइए माँ के साथ जुड़ते हैं मेरे शब्द, आपकी भावनाएं, कुछ क्षण माँ के चरणों में। शारदे 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 शारदे, अपने चरणों की रज से हमें तार दे। शारदे 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 शारदे, वेद पावन पुनीता और गीता लिखूं, राम जी संग संग मैया सीता लिखूं, सूर रस खान तुलसी कबीरा सी बन, लेखनी में बसो मैया मीरा सी बन, मेरे शब्दों को देवी धवल धार दे। शारदे 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 शारदे, शेख बिस्मिल भगत की कहानी लिखूं, खुद में मैं वीर झांसी की रानी लिखूं, राष्ट्र की बात आए तो शमशीर बन, मैं लिखूं धीर बन, मैं लिखूं वीर बन, बात जब प्रेम की हो तो श्रृंगार दे। शारदे 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 शारदे,
अगली पंक्तियों में अपनी जन्मभूमि व कर्मभूमि को सहेजने का प्रयास किया है, सुनिएगा। करके कल कल माँ गंगा की धारा बहे, झंडा ऊंचा जगत में हमारा रहे। घाट तमसा की पावन कथा मैं लिखूं, क्रांच क्रांची की दारुण व्यथा मैं लिखूं। वाल्मीकि प्रभु सा माँ उपहार दे, शारदे 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 शारदे। अगली पंक्तियां सुनिएगा। ज्ञान का कर उजाला तिमिरमा हरो, हर मनुज के हृदय भावना से भरो। नेह बरसा दो मैया ना सूखा रहे, कोई बालक यहाँ पर न भूखा रहे। आचरण में हो मैया सदाचार दे, आचरण में हो मैया सदाचार दे। शारदे 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 शारदे। वंदना की अंतिम पंक्तियां वंदित करती हूँ। दीन दुखियों के हक की लड़ाई लिखूं, जो भला हो उसी की बड़ाई लिखूं। वीणा पानी धवल वस्त्र धारी है माँ, हंस की करके आजा सवारी है माँ। विश्वव्यापी जगत में माँ तू प्यार दे, विश्वव्यापी जगत में माँ तू प्यार दे। शारदे 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 शारदे। धन्यवाद। जय माँ वीणा पानी। धन्यवाद अदिति। निश्चित ही माँ शारदे का आगमन इस काव्यांजलि में हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। इसी बात का है सुबह शाम रोना, कोरोना 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 कोरोना। सवेरे से बीवी का फरमाना, जब तक हुए 10 मिनट अब तो हाथों को धोना। कोरोना 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 कोरोना। कविता कभी हंसी तो कभी दर्द है, कभी चुभन। माँ बन शंखनाद जन मन में ला देती है परिवर्तन। तो आइए हास्य के रंगों से, व्यंग्य की फुहारों से, खुशियों की सौगातों से, भावों के एहसासों से सराबोर होते हैं। सबसे पहले हमारी नन्ही कवयित्री कुमारी माहम मंच पर कवि मंशाराम वर्मा की कविता के साथ। नमस्कार। जिसने सभी के जीवन को बदलकर रख दिया वह है कोरोना, एक विश्वव्यापी महामारी। इसके चलते देश भले ही लॉकडाउन झेल रहा है, हम सब अपने अपने घरों में बंद होने पर विवश हुए हैं। बावजूद इसके कोरोना वॉरियर्स अपने घरों से बाहर निकलकर अपनी जान को दांव पर लगाकर लाखों लोगों की जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में एक आम भारतीय नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? किस प्रकार हम कोरोना जैसी महामारी से स्वयं को बचा सकते हैं? उसकी सीख कल रात सपने में आकर स्वयं कोरोना ने ही मुझे दे दी। बस उसी सीख को कविता में पिरोकर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कल रात सपने में आया कोरोना, कल रात सपने में आया कोरोना। उसे देख जो मैं डरी तो मुस्कुराकर बोला, मुझसे डरो ना, मुझसे डरो ना। उसने कहा, कितनी अच्छी है तुम्हारी संस्कृति। उसने कहा, कितनी अच्छी है तुम्हारी संस्कृति। ना चूमते ना गले लगाते, दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते। वही कोरोना, मुझसे डरो ना, मुझसे डरो ना। कल रात सपने में आया कोरोना। कहाँ से सीखा तुमने ये रूम स्प्रे बॉडी स्प्रे? कहाँ से सीखा तुमने ये रूम स्प्रे बॉडी स्प्रे? पहले तो तुम धूप दीप अगरबत्ती रोबान जलाते, वही फिर से कोरोना, मुझसे डरो ना, मुझसे डरो ना। कल रात सपने में आया कोरोना। उसने कहा, सादा जीवन उच्च विचार, यही है तुम्हारे संस्कार। उसने कहा, सादा जीवन उच्च विचार, यही है तुम्हारे संस्कार। छोड़ो वह जंक फूड फास्ट फूड के चक्कर में पड़ो ना, वही कोरोना, मुझसे डरो ना, मुझसे डरो ना। कल रात सपने में आया कोरोना। उसने कहा, शुरू से तुम्हें सिखाया गया अच्छे से हाथ पैर धोकर घर में घुसो। उसने कहा, शुरू से तुम्हें सिखाया गया अच्छे से हाथ पैर धोकर घर में घुसो। मत भूलो अपनी संस्कृति।
वही करो ना, मुझसे डरो ना, मुझसे डरो ना, कल रात सपने में आया करो ना। उसने कहा, शुरू से तुमने जानवरों को पाला पोसा प्यार दिया। उसने कहा, शुरू से तुमने जानवरों को पाला पोसा प्यार दिया, तो रक्षण की है तुम्हारी संस्कृति, उनकी भक्षण करो ना, मुझसे डरो ना, मुझसे डरो ना, कल रात सपने में आया करो ना। धन्यवाद। भाई वाह, कोरोना ने अपने आप के विरुद्ध ही जंग छेड़ दी। अगर ये सीखे हम अपने जीवन में उतार ले तो क्या बात। ये नन्हे फूल जब महकते हैं तब ईश्वर की नीली छत्रियां तनती हैं। इन नन्ही कलियों के लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं। आगे देखते हैं। पता कम है पड़ताल ज्यादा है, उत्तर कम है सवाल ज्यादा है, उसको तालियों की खुराक देते रहना, व्यक्ति कवि कम बवाल ज्यादा है। सही पहचान है मित्रों। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आवाज दे रही हूँ कुमारी अलीशा अर्थात अरुण मित्तल अद्भुत जी को, जो अपनी मजेदार कविता के साथ आपको गुदगुदाने आ रहे हैं। नमस्कार। जिंदगी जीने के लिए निर्भय होना बहुत जरूरी है। आपने सुना ही होगा, गब्बर सिंह ये कहकर गया, जो डर गया वो मर गया। लेकिन फिर भी सुनसान सड़क हो, आधी रात का समय हो, पास ही शमशान हो, तो डर तो लगेगा ही। लेकिन उसी डर को हास्य के रूप में मैं आपके सामने अरुण मित्तल अद्भुत आज एक कविता प्रस्तुत करने जा। कविता छोटी सी है, आनंद उठाई। उस रात में बहुत डर रहा था, उस रात में बहुत डर रहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। एक तो मौसम बदहाल था, ऊपर से मेरा गर्मी से बुरा हाल था। अचानक मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने एक आदमी को देखा जो कब्र पे बैठा हुआ था। मैंने उसके पास जाके कहा कि इतनी रात को कोई भूल कर भी नहीं फटक, या तू तो कब्र पे बैठा है, तुझे डर नहीं लगता? मेरी बात सुनते हुए आदमी एंट गया। और अब आप अंदाजा लगाइए कि मेरे से बात कौन कर रहा है। मेरी बात सुनते हुए आदमी एंट गया और बोला कि इसमें डरने की क्या बात है, कब्र में गर्मी लग रही थी तो मैं बाहर आके बैठ गया। भाई वाह, सच आज की जिंदगी ऐसी ही हो गई है, जहां तेज रफ्तार और आपाधापी के बीच चैन का एक पल मिल जाए तो मुर्दों में भी जान आ जाए। लेकिन अरुण जी, हमें तो आपके दोहे सुनने थे। आप दोहे बहुत अच्छा गाते हैं, एक आधा सुनाएंगे? चलो भाई ठीक है, गौर से सुनिएगा। पढ़कर सुनकर देख कर निकला ये निष्कर्ष, पढ़कर सुनकर देख कर निकला ये निष्कर्ष। योद्धा बन लड़ते रहो, जीवन है संघर्ष। योद्धा बन लड़ते रहो, जीवन है संघर्ष। जग में सबके पास है अपना अपना स्वार्थ, जग में सबके पास है अपना अपना स्वार्थ। केवल तेरा कर्म है मानव तेरा हाथ, केवल तेरा कर्म है मानव तेरा हाथ। कर्म क्षेत्र में जो डटे लिया लक्ष्य को साथ, कर्म क्षेत्र में जो डटे लिया लक्ष्य को साथ। वही चखेगा एक दिन मधुर जीत का स्वाद, वही चखेगा एक दिन मधुर जीत का स्वाद। रखती है प्रकृति सदा परिवर्तन से मेल, रखती है प्रकृति सदा परिवर्तन से मेल। शूरवीर नित ढूंढते सदा नया एक खेल, शूरवीर नित ढूंढते सदा नया एक खेल। मौन हुआ वातावरण मांग रहा हुंकार, मौन हुआ वातावरण मांग रहा हुंकार। वक्त पुकारे आज फिर हो जाओ तैयार, वक्त पुकारे आज फिर हो जाओ तैयार। जागो आगे बढ़ चलो करो शक्ति संधान, जागो आगे बढ़ चलो करो शक्ति संधान। केवल दृढ़ संकल्प से संभव नव निर्माण, केवल दृढ़ संकल्प से
संभव नव निर्माण। कुछ तो ऐसा कर चलो जिस पर हो अभिमान, वो कुछ तो ऐसा कर चलो जिस पर हो अभिमान। इस दुनिया की भीड़ में बने अलग पहचान, इस दुनिया की भीड़ में बनी अलग पहचान, इस दुनिया की भीड़ में बनी अलग पहचान। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। भाई वाह अरुण जी, आज तो आपने हमारी बात रख ली। आगे देखते हैं किसकी बारी है। ये कवि किसी अजूबे से कम नहीं, हंसी रोक ले किसी में दम नहीं, संभल के बैठना नहीं तो उड़ जाओगे, हास्य कवि में इनसे बड़ा कोई बम नहीं। अरुण मित्तल जी के बाद अब मंच पर आवाज दे रही हूँ एक ऐसी हस्ती को जो अपनी मस्ती के आलम से आप सभी को मदमस्त कर देंगे। जी हाँ, तनु ढाका अर्थात हुल्लड़ मुरादाबादी जी मंच पर आ रहे हैं अपनी कविता रेल की यात्रा के साथ। हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है और हंस कर किया हुआ काम आपकी पहचान बढ़ाता है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मंच पर आने का अवसर दिया। और मैं हूँ हुल्लड़ मुरादाबादी, नाम से ही समझ गए होंगे मुरादाबाद से आया हूँ। और आप जानते हैं भाई, हम कवि लोग हैं तो कवि लोगों की जेब थोड़ी हल्की होती है, तो फ्लाइट व्लाइट के अवसर थोड़े कम मिलते हैं। अब रेल की यात्रा कैसी हो सकती है आप जानते होंगे। अब रेल की यात्रा में क्या भीड़ भाड़, क्या स्थितियां होती हैं वो भी आप जानते होंगे। तो एक बार मैंने भी रेल की यात्रा की और मेरा क्या अनुभव रहा मैं आपको इस कविता के माध्यम से सुना रहा हूँ। जरा गौर से सुनना। एक बार हमें करनी पड़ी रेल की यात्रा, एक बार हमें करनी पड़ी रेल की यात्रा और देख सवारियों की मात्रा, पसीने लगे छूटने और हम घर की तरफ लगे फूटने। इतने में और हम जाना है। हमने कहा हाँ भाई जाना है। उसने कहा साहब अंदर तो पहुंचा दूंगा पर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा सामान नहीं केवल हम हैं, अगर आगे की पंक्तियां पसंद आए तो दाद चाहूंगा। हमने कहा सामान नहीं केवल हम हैं, तो कहने लगा साहब क्या आप किसी सामान से कम हैं। अब जैसे तैसे डिब्बे के अंदर यहाँ का दृश्य तो और भी घमासान था। पूरा का पूरा डिब्बा अपने आप में एक हिंदुस्तान था। मान्यवर, पूरा का पूरा डिब्बा अपने आप में एक हिंदुस्तान था। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। कोई सीट पर बैठा था तो कोई खड़ा था। जिसे खड़े होने की भी जगह नहीं मिली वो सीट के नीचे पड़ा था। तभी इतने में एक बोरा उछल कर आया और गंजे के सर से टकराया। गंजा चिल्लाया, ये किसका बोरा है? बाजू वाला बोला, इसमें तो 12 साल का छोरा है। तभी कुछ आवाज हुई और एक बोला चली चली, दूसरा बोला या अली। हमने कहा काहे की अली, काहे की बली, ट्रेन तो बगल वाली चली। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको मेरी कविता पसंद आई होगी और मेरी तरफ से आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ मुरादाबादी जी, मजा आ गया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। अब आप समझ ही सकते हैं कि इस छोटी सी रोजमर्रा की बात में ईश्वर को क्यों घसीटा जाता है। जब रेलें नहीं चलती थी, यात्राएं कितनी कष्टप्रद थी। आज रेलें चल रही हैं, यात्राएं फिर भी इतनी ही कष्टप्रद है।
ये कितनी खुशी की बात है नहीं, कि प्रगति के कारण हमने अपना इतिहास नहीं छोड़ा। दुर्दशा तब भी थी, दुर्दशा अब भी है। ये रेलें, ये हवाई जहाज सब विदेशी है। न ये हमारा चरित्र बदल सकती है और ना ही भाग्य। खैर, आगे बढ़ते हैं। मुसाहिब में, बहस में ये बड़ा अधिकार रखते हैं कि हाजिर जवाबी में ये डिग्रियां 4 रखते हैं। कई मुहजोरियों पर शोध करके यहाँ पहुंचे हास्य कवियों का इन्हें सरताज कहते हैं। अब मुरादाबाद से चलते हैं बीकानेर की तरफ। कुमारी वैष्णवी अर्थात श्री अल्हड़ बीकानेरी जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। धन्यवाद कुमार भाई। जेब में पैसे नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, डिग्रियां यहाँ फिरता हूँ, दिनों दिन अपनी ही नजरों में दिखता हूँ। कामयाबी के खुले किवाड़ चाहिए, कामयाबी के खुले किवाड़ चाहिए, बेरोजगार साहब मुझे रोजगार चाहिए। खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, बेरोजगार साहब मुझे रोजगार चाहिए। बेरोजगारी या नौकरी की चाह क्या होती है, एक बेरोजगार युवक का दर्द क्या होता है, इसी की एक छोटी सी झलक मैंने अपनी इस कविता में दिखाने की कोशिश की है। प्रस्तुत है कविता, आनंद लीजिए। नदी में डूबते आदमी ने, नदी में डूबते आदमी ने पुल पर चलते आदमी को कहा, बचाओ बचाओ बचाओ। पुल पर चलते आदमी ने रस्सी नीचे गिराई और कहा, आ जाओ। नीचे वाला आदमी उसकी पकड़ भी नहीं पा रहा था और रह रहकर चिल्ला रहा था, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, बड़ी महंगी जिंदगी है, कल ही तो मेरी एबीसी कंपनी में नौकरी लगी है। इतना सुनते ही पुल वाले आदमी ने रस्सी ऊपर खींची और उसे मरता देख अपनी आंखें मीच ली और दौड़ा दौड़ा एबीसी कंपनी पहुंचा। दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं उसने एबीसी कंपनी पहुंचकर क्या कहा होगा? चलिए बताती हूँ। उसने एबीसी कंपनी पहुंचकर कहा, अभी अभी आपका एक आदमी डूबकर मर गया, इसी तरह वह आपकी कंपनी में एक जगह खाली कर गया। ये मेरी डिग्रियां संभाले, बेरोजगार है, इसकी जगह हमें लगा लें। इतना सुनते ही ऑफिसर ने हंसते हुए कहा, भाई तुमने आने में कितनी देर कर दी, यह जगह तो हमने अभी 10 मिनट पहले भर दी और इस जगह पर हमने उस आदमी को लगाया है जो उस व्यक्ति को पुल पे से धक्का देकर तुमसे 10 मिनट पहले आया है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। मीठी बात और चेहरे पे मुस्कान, ऐसे ही लोग हैं हमारी महफिल की शान। तुम आए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमी पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। कुमारी हेजल अर्थात अल्हड़ कवित्री कविता तिवारी आज हमारे मध्य उपस्थित है, तो अगली प्रस्तुति के लिए वे मंच पर आए, ऐसी हमारी गुजारिश है। धन द्रव्य संपदा तो नहीं मांग रही हूँ, जो मांग रही हूँ वो सही मांग रही हूँ। कविता की पंक्ति पंक्ति राष्ट्र जागरण बने, आशीष आपसे यही मांग रही हूँ, आशीष आपसे यही मांग रही हूँ। नमस्कार, मैं कविता तिवारी इस पवित्र मंच को प्रणाम करते हुए आप सभी को साधुवाद देती हूँ और वीरता की गाथा पर 4 पंक्तियां आपके समक्ष रखूंगी। निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुंभलाती है, जब घटाटोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अब बुलाती है, जब नागफनी को पारिजात के दृश्य बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिंहनाद की जगह श्रृंगारों की आवाजें आती है, जब गौओं के आदेशों पर कोयलें बातें हो गाती है, कोयलें बातें हो गाती है, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब
सब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो या देव रूप धरती पर आना पड़ता है। देवी हो या देव रूप धरती पर आना पड़ता है। हर कोना हर कोना हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का। अब मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ। युवाओं का आदर्श कौन होना चाहिए, सुनिए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता कविता मांगती तुझसे। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। धन्यवाद। शब्दों का वजन तो हमारे बोलने के भाव से पता चलता है। वैसे तो दीवारों पर भी वेलकम लिखा होता है। आज कविता तिवारी जी ने साबित कर दिया कि हौसले जिनके अकेले चलने के होते हैं, एक दिन उनके पीछे ही काफिले होते हैं। धन्यवाद तिवारी जी। आगे बढ़ते हैं। अनामिक कविता तिवारी जी के बाद मंच पर हम सबको हंसाने और गुदगुदाने के लिए आ रही हैं किशले शर्मा अर्थात भाई गौरव शर्मा। आपको बता दूं कि इनकी पत्नी को ये घोर आपत्ति है कि ये व्यक्ति उनकी नहीं कवि सम्मेलन की संपत्ति है। आपकी जोरदार तालियों का धन्यवाद। यहाँ आए सभी लोगों का मैं गौरव शर्मा अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे देश में कहावत है कि जिसका आधा दिमाग खराब होता है वो कवि बनता है, जिसका पूरा दिमाग खराब होता है वो कवि सम्मेलन करवाते हैं। बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति। इनके बाद मुझे सुनना आपको ऐसा ही लगेगा जैसे लता जी के गाने के बाद छगन भुजबल जी का भाषण। देखिए, आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आप इतने सारे लोग आए, इतनी बड़ी संख्या में है, अपना समय निकाल के आए इस कवि सम्मेलन का हिस्सा बनने। आम तौर पे हमारे देश में संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ 100 चैनल है और ये एकता कपूर जिसने घर घर की एकता को कपूर में उड़ा दिया है। और भगवान बालाजी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो टीवी चैनल की मैं बात कर रहा था मित्रों। व्यंग है, आपको अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा। मैंने मेरी पत्नी से पूछा कि तुम्हें नहीं लगता है इस टीवी के कारण हम दोनों में कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है? वो टीवी देखते देखते बोली 2 मिनट बाद बात करना, कि 2 मिनट बाद बात करना, ब्रेक आ रहा है। आजकल के जमाने में सोशल मीडिया को तो सब जानते ही होंगे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का बच्चों पे ऐसा असर कि जिस उम्र में हमारे दूध के दांत टूटते थे, आजकल उस उम्र में बच्चों के दिल टूटने लगे हैं। ये तो पहली समस्या थी। दूसरी, हमने हमारे जीवन में अंग्रेजी को ऐसा स्थान दे दिया है कि जिसको आती है उसने तो गंगा स्नान कर लिया है। इसी कारण मैंने और मेरे मित्र दीपक ने तय किया कि आज के बाद हम केवल अंग्रेजी में बात करेंगे और एक दूसरे की गलतियां बताएंगे। ये एग्रीमेंट केवल एक दिन चला, क्योंकि दूसरे दिन हम दोनों में झगड़ा होने लगा। क्योंकि दूसरे दिन वो कहने लगा चलो गार्डन में वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग करते करते टालकिंग करेंगे। मैं बोला वॉकिंग नहीं वॉकिंग होता है, टालकिंग नहीं टॉकिंग होता है।
इसमें एल साइलेंट होता है। अब हमने अपना ज्ञान दिखाया, सुनिएगा, कि हमने अपना ज्ञान दिखाया, हमने बोला आदमी को होनेस्ट होता है, होना चाहिए, जो आदमी होनेस्ट होता है उसी का हुनर होता है। सही कहा ना, कि जो आदमी होनेस्ट होता है उसी का हुनर होता है। अब दीपक बोला कि ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट होता है, हॉर्नर नहीं, ऑनर होता है, इसमें एज साइलेंट होता है। अब हम दोनों में झगड़ा होने लगा, हमें झगड़ते झगड़ते अंग्रेजी के महागुरु आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी के पास गए। मैं बोला ये वॉकिंग को वाकिंग कह रहा है, टॉकिंग को टाल्किंग कह रहा है, इसे समझाओ, इसमें साइलेंट होता है। वो बोला कि इसे समझाओ कि हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट होता है, हॉर्नर नहीं ऑनर होता है, इसमें एज साइलेंट होता है। हमारी बातें सुन सुनकर आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी ने अपना सिर पकड़ लिया, कहने लगे कि बेवकूफो, जब तुम दोनों को ही इंग्लिश का नॉलेज ही नहीं है तो बोलते क्यों हो। बस 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 तालियां ही बजाइएगा भाई और बहनों। हाँ, तो मैं क्या बात करता, हाँ, मैं हमारे देश की इंग्लिश की बात कर रहा था। मैं गाँव का आदमी, मैं मैट्रिक बीट्रिक से हुआ हूँ। हमारे यहाँ ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं कि बड़े बड़े अंग्रेज भी अर्थ समझने के लिए डिक्शनरी खोलते हैं। कुछ नमूनों को देखना। मैं एक आम आदमी हूँ, आई एम अ वुमन, मुझे इंग्लिश आती है, इंग्लिश कम्स टू मी। मेरा ताल्लुक हरिपुर से, आई बिलोंग टू ग्रीनपुर, पर हमारी इंग्लिश एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कट टू कट। करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, मेरे बाप का क्या जाता है। डू नॉट डू व्हाट माय फादर्स गॉट सेड। ऐसे ही एक आदमी अपनी इंग्लिश दिखाने के लिए बोलने लगा कि मेरी 2 बेटियां हैं, आई हैव 2 daughters एंड बोथ आर गर्ल्स। ये सुनिएगा कि वसंत ने मुझे मुक्का मारा, वसंत पंचमी। हम हिंदुस्तानी लोगों का कॉन्फिडेंस एक नंबर चीज है, एक नंबर इंग्लिश के मामले में। एक लड़की अपना रिजल्ट देख के बोली, क्या मैं फेल हो गई, वो भी इंग्लिश में, अनपॉसिबल अनपॉसिबल। तो आप समझ गए होंगे उसका पास होना भी अनपॉसिबल अनपॉसिबल। ऐसे मेरे दोस्त ने कहा कि इनसे मिलो, ये मेरे लीगल फादर। मैं बोला लीगल फादर, बोला फादर इन लॉ। ऐसे ही 2 दोस्त मैरिज ब्यूरो में अपना बायोडेटा तैयार करा रहे थे, खुद ही अपने गले में फांसी का फंदा बांध रहे थे कि 2 दोस्त मैरिज ब्यूरो में बायोडेटा तैयार करा रहे थे। एक कॉलम था व्हाट इज योर ज़ोडिएक साइन, एक ने लिखा कैंसर तो दूसरे ने देख के लिख दिया पाइल्स। आप देख रहे हैं इंग्लिश का असर कि एक ने लिखा कैंसर तो दूसरे ने लिख दिया पाइल्स। हमारे हिंदुस्तान में लोग बैंक के लिए लोन की एप्लीकेशन भी ऐसे देते हैं, गिव मी अ लोन देन लीव मी अलोन, गिव मी अ लोन देन। इसलिए हमारे देश में 80% से ज्यादा लोन सैंक्शन नहीं होते हैं, देंगे नहीं तो होंगे कहां से। ऐसे ही एक शादीशुदा आदमी के दरवाजे पे लिखा था, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड। एक फोटो स्टूडियो के बाहर लिखा था कि वी कैन शूट योर वाइफ एंड किल योर मदर ऑन इट। फिर वो बोला नहीं नहीं नहीं, वी कैन फ्रेम योर मदर इन लॉ, ये खुशी मिलने में आपको वक्त है। तो मैं पति और पत्नी के रिश्ते की बात कर रहा था, बड़ा ही अनोखा है दोनों का रिश्ता। व्यंग है, आपको अच्छा लगे तो मुझे तालियां जरूर उठाइएगा। कि एक आदमी ने 25 बार रक्तदान किया, कि एक आदमी ने 25 बार रक्तदान किया तो ब्लड बैंक वालों ने उसकी बीवी का सम्मान किया, ये कहकर कि आपने नहीं पिया कभी तो हमने लिया। ऐसे एक आदमी की लाख कोशिश करने के बाद भी उसकी शादी नहीं हुई थी। वो अपनी माँ के साथ मन्नत मांगने गया और उसकी माँ खो गई। वो बोला या खुदा तेरी खुदाई, बोला या खुदा तेरी खुदाई, अपनी तो मिली नहीं बापू की भी गवाही। तो हमारे देश में ऑब्जर्वेशन भी बहुत अलग है, आपकी अलग है, मेरी अलग है। मेरी पहली ऑब्जर्वेशन आपको अच्छा लगे तो मुझे दाद दीजिएगा कि हमारे देश में हर एक व्यक्ति ईमानदार है, हर एक आदमी ईमानदार जब तक वो पकड़ा ना जाए।
एक पत्नी अपने पति से कहती है, अपना धोबी बड़ा चोर निकला, उसने अपने 2 टोबल चुरा लिए। पति चिल्लाकर पूछा, कौन से वाले, होटल ताज वाले या ओबेरॉय वाले? वो धीरे से बोली, मस्कट वाले। दूसरा, हमारे देश में हर जगह नेगेटिविटी छा रखी है, हर जगह, क्योंकि हम जैसे लोगों को टेंशन लेने की टेंडेंसी है। सही कह रहा हूँ ना भाई, सही कह रहा हूँ ना, कि हमें जबरदस्ती टेंशन लेनी है। एक आदमी वही मुंह लटका कर बैठा था। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई? वो बोला, एक दिन तो हर कोई मरेगा। मैं बोला, तो इसमें टेंशन लेने की बात क्या है? वो बोला कि मैं सोच रहा था, जो आखिर में मरेगा उसे शमशान कौन लेकर जाएगा। देखिए भाई, ऐसा ही कुछ वाक्य मेरे साथ हुआ। मैं एक होटल में गया, मैंने वेटर को पानी देने को कहा। वो बोला, क्यों, प्यास लगी है? मैं बोला, नहीं, चेक करना है कहीं से लीक तो नहीं हो रहा है। भाई, पानी मांगे तो पीने के लिए मांगा होगा। मुझे पता है आप मुझे अच्छे से सुन रहे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन वक्त की भी एक सीमा है और मुझे वक्त पे कुछ पंक्तियां याद आई, अपने साथ जरूर ले जाइएगा। कि जब मेरा वक्त था तब मेरे पास वक्त नहीं था, कि जब मेरा वक्त था तब मेरे पास वक्त नहीं था, आज मेरे पास वक्त है पर आज मेरा वक्त नहीं है। वक्त की ताकत देखिएगा, गौर से सुनिएगा, कि वक्त की ताकत देखिए, कि जिंदगी बदलने में वक्त नहीं लगता, कि जिंदगी बदलने में वक्त नहीं लगता, लेकिन वक्त बदलने के लिए कभी कभी पूरी जिंदगी लग जाती है। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खूब कह गए शर्मा जी। हंसाने के साथ साथ अंत में हमें एक सीख भी देके गए हैं। अभी आगे वाले कवि को आप ही पहचानेंगे। माना कि ये व्यक्ति कवि कम दुकानदार ज्यादा लगता है, ये भी माना कि बरामदे में पड़ा सामान ज्यादा लगता है, मगर भाई साहब, ये मशीन जैसा दिखने वाला व्यक्ति कवि ही है और हमारे देश के हास्य कवियों में खास पहचान रखता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। कुमारी आयुषी अर्थात भाई चतुर्वेदी जी मंच पर आ गए हैं, तो चलिए सुनते हैं उनकी और उनकी पत्नी की कहानी। अभी अभी मेरा परिचय बड़े और मोटे कवि से किया गया है, परंतु मैं बिल्कुल छोटा परंतु पतला कवि हूँ। आप सभी के सामने एक बहुत ही भारी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, कविता बारीक है, बिल्कुल मेरी तरह। एक दिन बात की बात में बात बिगड़ गई। हमारी घरवाली हमसे ही अड़ गई। हमने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सा। कहने लगी, आदमी हो तो आदमी की तरह रहो। कहने लगी, आदमी हो तो आदमी की तरह रहो। आंखें दिखाते हो, कोई ऐसा नहीं करते जो कमा कर खिलाते हो। सभी खिलाते हैं, तुमने आदमी नहीं देखे, झूले पे झुलाते हैं। देखते कहीं हो और चलते कहीं हो। कई बार कहा है, इधर उधर मत ताको, बुढ़ापे की खिड़की से जवानी को मत झाको। कोई मुझ जैसे मिल गई तो सब भूल जाओगे, वैसे ही फूले हो और फूल जाओगे। चंदन लगाने की उम्र में पाउडर लगाते हो। भगवान जाने एक खट्टू सा चेहरा किसको दिखाते हो। हमारी डैडी भी शादीशुदा थे, मगर मजाल है कभी हमारी मम्मी से भी आंख मिलाई हो। मम्मी 1000 कह लेती थी, कभी जुबान हिलाई हो। कमाकर 500 लाते हो और अकड़ तो 1000 की दिखाते हो। हमारे डैडी 2-2 हजार एक बैठक में हार जाते थे, मगर दूसरे ही दिन 4000 न जाने कहां से मार लाते थे। छोड़ो छोड़ो, तुमसे भी कोई मर्द होता है? जब भी बाहर जाते हो कोई ना कोई चीज भूल आते हो। न जाने कितने पेन टॉर्च और चश्मे घुमा चुके हो। अब वो जमाना नहीं रहा जो 4 आने के साग में कुनबा खा ले,
2 रुपए का साग तो तुम अकेले खा जाते हो। अब उस वक्त भी क्या टोकू जब थके मारते दफ्तर से आते हो। कोई तीर नहीं मारते जो दफ्तर जाते हो। रोज एक ना एक बटन तोड़ लाते हो। मैं बटन टाकते टाकते काज हुई जा रही हूँ। मैं ही जानती हूँ, सच में मैं ही जानती हूँ कैसे निभा रही हूँ। अरे बूढ़े हो चले हो मगर संसार हरा रखता है। अब तो अकल से काम लो, राम का नाम लो। शर्म नहीं आती रात रात भर बाहर झक मारते हो। इसी के साथ दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, औरत पालने को कलेजा चाहिए, गृहस्थी चलाना कोई खेल नहीं। क्यों कुमार विश्वास जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं। कभी बुलबुल, कभी तितली, कभी गुलजार लगती है। शुरू में हर नई पत्नी स्वर्ग का द्वार लगती है। मैं किन शब्दों में बताऊं जिसे 56 छुरी समझा था, वही बीवी मुझे आजकल तलवार लगती है। इस मीठी नोक-झोंक को एक तरफ रखते हुए विषयांतर करते हुए हमारी भारतीय संस्कृति की गौरवशालिनी परंपरा पर किस प्रकार पाश्चात्य संस्कृति हावी होती जा रही है, इसी पर अपना अफसोस व्यक्त करते हुए आज हमारे बीच हैं कुमारी प्रणव प्रज्ञा अर्थात पद्मश्री विभूषित काका हाथरस जी। धन्यवाद भाई कुमार, मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। आज के इस दौर में जहाँ दूध की जगह लिप्टन ग्रीन टी ने ले ली है और घी और रोटी की जगह जहाँ ब्रेड बटर ने ले ली है, उसी पर व्यंग्य करते हुए काका हाथरसी कहते हैं, काका या संसार में व्यर्थ भैंस अरुगाय, काका या संसार में व्यर्थ भैंस अरुगाय, मिल्क पाउडर डालकर पी लिप्टन की चाय। अरे पी लिप्टन की चाय साहबी, ठाठ बनाओ, सिंगल रोटी छोड़ डबल रोटी तुम खाओ। कहे काका कविराय पैंट के घुस जा अंदर, अरे कहे काका कविराय पैंट के घुस जा अंदर, देसी बाना छोड़ बनो अंग्रेजी बंदर, देसी बाना छोड़ बनो अंग्रेजी बंदर। इतना ही नहीं, आजकल व्यक्ति इतना मतलब परस्त होता जा रहा है और आलसी होता जा रहा है कि कर्जा लेकर भी अपने शौक पूरे करने में कभी नहीं चूकता। इसी पर चिंता जताते हुए काका कुछ पंक्तियां कहते हैं, जप तप तीरथ व्यर्थ है, व्यर्थ यज्ञ ओ योग, जप तप तीरथ व्यर्थ है, व्यर्थ यज्ञ ओ योग, कर्जा लेकर खाइए नित प्रतिमोहन भोग, नित प्रतिमोहन भोग करो काया की पूजा, आत्मयज्ञ से बढ़कर यज्ञ नहीं है दूजा। कहे काका कविराय नाम कुछ रोशन कर जा, कहे काका कविराय नाम कुछ रोशन कर जा, मरना तो निश्चित है कर्जा लेकर मर जा। पढ़ाई की इम्पोर्टेंस आजकल इतनी बढ़ गई है कि छोटे गांव से, कस्बों से, शहरों से बच्चे शहर में पढ़ने के लिए आते हैं, उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए आते हैं। और जहां गांव में माँ बाप हाथ तोड़ मेहनत कर बच्चों को शहर भेजते हैं पढ़ाने के लिए, पर बच्चे शहर आकर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसी पर चिंता जताते हुए काका कुछ पंक्तियां कहते हैं, फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, अरे फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, लल्लू मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट हुए हॉस्टल में भर्ती, अरे कॉलेज स्टूडेंट हुए हॉस्टल में भर्ती, दिन भर चरे बिस्कुट शाम को खाए इमरती, कहे काका कविराय बुद्धि पर डाली चादर, अरे कहे काका कविराय बुद्धि पर डाली चादर, मौज कर रहे पुत्र हड्डियां घिसते फादर, मौज कर रहे पुत्र हड्डियां घिसते फादर। पढ़ना लिखना भूलकर आजकल बच्चे फैशन, राजनीति, गुंडागर्दी में पढ़कर अपना जीवन बर्बाद करने में लगे रहते हैं।
इसी भाव को हास्य के माध्यम से काका समझाते हैं। अरे पढ़ना लिखना व्यर्थ है, दिन भर खेलो खेल। अरे पढ़ना लिखना व्यर्थ है, दिन भर खेलो खेल। होत रहू 2 साल तक फर्स्ट ईयर में फेल। फर्स्ट ईयर में फेल, जेब में कंघा डाला। फर्स्ट ईयर में फेल, जेब में कंघा डाला। साइकिल ले चल दी, लगा कमरे का ताला। कह काका कबीराय गेट कीपर से लड़कर। कह काका कबीराय गेट कीपर से लड़कर। मुफ्त सिनेमा देख कोच पर बैठ अकड़ कर। अरे मुफ्त सिनेमा देख कोच पर बैठ अकड़ कर। धन्यवाद। अगर वाचन में कोई भी अशुद्धि हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और मेरी तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। काका हाथरस जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि इनका वास्तविक नाम प्रभु लाल गर्ग था। काका के नाम से नाटक करने और हाथरस के होने के कारण हम इन्हें काका हाथरस जी कहने लगे। धन्यवाद काका जी। काका के बाद कविता को घर घर पहुंचाने वाले जोधपुर के कवि, मारवाड़ी संस्कृति के जीते जागते उदाहरण, हिंदी भाषा के सशक्त हस्ताक्षर, हम सबके दुलारे तारक मेहता श्री शैलेश लोढ़ा यानी कि हमारी कुमारी प्राची शर्मा। धन्यवाद। 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है कि पहले अभाव में खुशियां थी, अब खुशियों में अभाव है। लो भाई देख ही लो, मैं सोचा मुरादाबादी आ गए, बीकानेरी आ गए, तो इस जोधपुरी को क्यों नहीं बुलाया। देर से ही सही, बारी तो आई। अब भाई मैं तो मारवाड़ी, टेम को पक्को सीधा कविता ही शुरू कर शू। पूरब और पश्चिम का झगड़ा तो हमेशा से ही चला आता है। इस बीच अंग्रेजों को लगता है कि वो हमसे बड़े हैं, पर उन्हें नहीं मालूम जनाब, हम उनसे कहीं आगे खड़े हैं। ऐसे एक अंग्रेज मेरे पास आया और बोला कि तुम हिंदुस्तानी हमारी बराबरी कहां तक कर लोगे। मैंने उस अंग्रेज को देखा और मैं बोला कि तुम अंग्रेज क्या खाकर हमारा मुकाबला करोगे, तुम तो हमारे जोड़ का बस एक शब्द लाकर दिखा दो। बोला पूछो। मैंने कहा तुम चेहरे को अंग्रेजी में क्या कहते हो। बोले फेस। और थोबड़े का। मैंने कहा तुम पत्नी को अंग्रेजी में क्या कहते हो। बोले वाइफ। और लुगाई को। मैंने कहा और सब छोड़, मेरी पत्नी रोज सुबह उठकर मुझे एक वाक्य बोलती है तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते मैं जिंदगी भर तेरा गुलाम हो जाऊंगा। बोला क्या बोलती है। मैंने कहा तुझसे शादी करके तो मैंने मेरे कर्म ठोक लिए, तू ला कर्म और ठोक तेरा बाप अंग्रेजी में नहीं ला के दे सकता। मैं चाहता हूं ऑनलाइन मौजूद सभी मेरे दोस्त जोरदार तालियां बजा के हिंदी का सम्मान करें। पश्चिमी सभ्यता में बहुत ही खुलापन है, तो वहां बच्चे माँ बाप को अपनी पसंद के बारे में बताते हैं और माँ बाप अपने आप उनकी शादी उनकी पसंद से करवाते हैं। ऐसे एक बाप और बेटे को मैंने देखा तो मैं बोला कितना बढ़िया बाप है, खुद अपने ही बेटे को बोल रहा है कि जा अपनी पसंद से शादी कर। मैंने कहा है खुदा मुझे भी इस अमेरिका भेज देता तो तेरा क्या जाता। खुलेआम चिंता हटाते, लड़की पटाते। वरना हिंदुस्तान में हमारे पिताजी वो कूटनीति विशेषज्ञ हैं, क्योंकि कूटते ही रहते हैं। वो दिन में 3 बार तो इसलिए कूटते हैं क्योंकि उन्हें बताना होता है कि मैं तेरा बाप हूं। मैंने कहा हिंदुस्तान में हमारे पिताजी, उन्हें पता लगे पड़ोस की लड़की पे डोरे डाल रहे हैं तो कहे ऐसे घर का लड़का और ऐसी हरकतें, ये सारी शान निकाल दूंगा, ये 2 घोड़ी की जान निकाल दूंगा। मैंने कहा अमेरिका कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है, हम उनसे कितना पीछे हैं, कितना नीचे हैं। मुझे भी इस अमेरिका जाना और जिंदगी के मजे उठाने। तो ये आइडिया मैंने वहां बैठे बुजुर्ग जोड़े को सुनाया तो उन्होंने मेरा कंधा प्यार से थपथपाया और कहने लगे कि बेटा ये चमक, ये धमक, ये रोशनी लगती खूब सच्ची है और लगती भी खूब अच्छी है। कि बेटा ये चमक, ये धमक, ये रोशनी लगती खूब सच्ची है और लगती भी खूब अच्छी है, पर तुम्हें क्या मालूम हम बाहर से कितना हंसते हैं और अंदर से कितना पिसते हैं, आंखों से आंसू रिसते हैं। अरे और कुछ नहीं होगा तुम्हारे मुल्क के पास, कि और कुछ नहीं होगा तुम्हारे मुल्क के पास, लेकिन वहां सच्चे रिश्ते हैं और शाम तक वहां बेटा घर ना लौटे तो पिता को खाना नहीं भाता है।
कि बेटा शाम तक घर ना लौटे तो पिता को खाना नहीं पाता है। और अगली पंक्ति में तर्क कितना बड़ा और बात कितनी छोटी है, गौर से सुनिएगा कि अगली पंक्ति में तर्क कितना बड़ा और बात कितनी छोटी है कि शाम तक बेटा घर ना लौटे तो पिता को खाना नहीं पाता है। और इतनी तमीज तो है कि इतनी तमीज तो है कि छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने गलत काम नहीं कर पाता है। कि जब बहन विदा होती है ना, कि जब बहन विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं। हर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। आप सभी जो ऑनलाइन मौजूद है मेरे साथ, उन सभी को बताना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा, जो चीज आपके पास है, जो मेरे पास है, शायद उसके होने का हमें एहसास नहीं होगा। तभी कहता हूं और याद दिलाता हूं कि इस पूरी दुनिया के ग्लोब पे, इस पूरी दुनिया के ग्लोब पे 203 देश है और 203 देशों में से एकमात्र देश ऐसा है जहां बच्चे माँ बाप के पांव छूते हैं। वो देश हिंदुस्तान है और कोई देश हो नहीं सकता। तो मैंने कहा जब बहन विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं। हर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ा कि दोस्त, बात में दम है। हम तो सिर्फ हम हैं। और क्या नहीं है मेरे देश के पास, कि क्या नहीं है मेरे देश के पास। भले ही आंखों में नमी, चेहरे पर गुब्बार है, देश में मिली जुली एक सरकार है, जेब में कुछ पैसे उधार है, न चमक है न धमक है न रोशनी है। न चमक है न धमक है न रोशनी है, न बिल्डिंग है न कार है। अगली पंक्ति में एक प्राण पंक्ति सौंपता हूं, एक प्राण शब्द सौंपता हूं। मैंने एक कविता नहीं लिखी, 133 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसने वाले इस शब्द को उठाया और कलम की नोक पर रख दिया, ताकि आप याद रख सकें और दावे के साथ कह सकें कि जोधपुर से शैलेश आया था और बता के गया है कि दुनिया भर की समृद्धि, दुनिया भर की संपदा, दुनिया भर का वैभव और दुनिया भर की ताकत को तराजू के एक पलड़े पे रख दीजिए और एक पलड़े पे मेरे देश का एकमात्र शब्द रख दीजिए, फिर भी मेरे देश का पलड़ा भारी होगा। कि ऐसा क्या है जो मेरे देश के सिवा किसी और देश में नहीं हो सकता। मैंने कहा दोस्त, बात में दम है। हम तो सिर्फ हम हैं। और क्या नहीं है मेरे देश के पास, कि आंखों में नमी, चेहरे पर गुब्बार है, देश में मिली जुली एक सरकार है, जेब में कुछ पैसे उधार है, न चमक है न धमक है न रोशनी है। न चमक है न धमक है न रोशनी है, न बिल्डिंग है न कार है, लेकिन दोस्त मेरे देश के पास संस्कार है। संस्कार है दोस्त, मेरे देश के पास संस्कार है। धन्यवाद। गजब कह गए लोढ़ा जी। सच, पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से और जीते हुए भी हार सकते हैं अहंकार से। आगे बढ़ते हैं। चुनावी मौसम आया है 5 सालों में, आया है तो खो रहा है भाषण और बयानों में। विरोधियों का मिलना खूब हो रहा है, हर कोई उम्मीदवार ढूंढ रहा है। भारतीय चुनाव व्यवस्था और नेताओं के झूठे वादे और इरादे भोली भाली जनता को किस प्रकार भ्रमित करते हैं, ये भला किससे छपा है। उसी की एक सुंदर मार्मिक अभिव्यक्ति भाई अशोक चक्रधर जी ने अपनी पंचतंत्र की कथाओं के माध्यम से की है, अपनी कविता जंगल में चुनाव में। तो आइए आनंद उठाते हैं और मंच पर बुलाते हैं कुमारी लक्षिका अर्थात चक्रधर जी को, जिनका मंत्र ही है हंसो तो बच्चों जैसी हंसी, हंसो तो सच्चों जैसी हंसी। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैसे तो मैं एक हास्य कवि, परंतु आज हमारे साथ बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। तो एक कविता है जिसको कहानी के रूप में प्रस्तुत करूंगा। पसंद आई तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे, वरना गाड़ी मोड़ कहीं और चलेंगे। तो आइए कविता सुनते हैं। एक नन्हा मेमना और उसकी माँ बकरी जा रहे थे जंगल में, राह थी संकरी। अचानक सामने आ गया एक शेर, और अब तो हो चुकी थी बहुत देर। भागने का कोई भी नहीं था रास्ता,
यहाँ बकरी और मेमने की हालत खस्ता। वहां शेर के पांव धरती नापे, यहाँ ये दोनों थर थर कांपे। अब तो शेर आ गया बिल्कुल सामने, बकरी लगी जैसे तैसे मेमने को थामने। तभी झटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या तुम खा जाओगे हमें कच्चा? शेर मुस्कुराया, उसने अपना भारी पंजा मेमने के सिर पे फिराया, बोला हे बकरी कुलगौरव, आयुष्मान चिरायु भव, दीर्घायु भव, कर कलरव हो उत्सव, साबुत रहे तेरे सब अवयव, नाचो कूदो और जियो हंसते हंसते, अच्छा बकरी मैया नमस्ते। इतना कहकर शेर ने किया प्रस्थान। बकरी हैरान, बोली बेटा ताज्जुब है, ये शेर किसी पे रहम खाने वाला है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। अरे वाह, ये तो आपने उत्तीर्ण कर दिया है हमें। अब तो पूरी कविता सुना कर ही जाएंगे। तो आगे सुनिए कि पानी से निकलकर मगरमच्छ किनारे पर आया। पानी से निकलकर मगरमच्छ किनारे पर आया, इशारे से बंदर को बुलवाया। बंदर गुर्राया, हाँ हाँ, क्यों क्यों, तुम्हारी नजर में मेरा कलेजा है? मगरमच्छ बोला ना ना, तुम्हारी भाभी ने खास तुम्हारे लिए ये सिंघाड़े का अचार भेजा है। बंदर सोचा ये क्या गड़बड़ झाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। प्रकट में बोला वाह, अचार वो भी सिंघाड़े का, यानी तालाब के कबाड़े का। बड़ी ही दयावान तुम्हारी मादा है, लगता है शेर के खिलाफ चुनाव लड़ने का इरादा है। मगरमच्छ बोला कैसे जाना कैसे जाना? बंदर बोला ऐसे जाना कि आजकल भ्रष्टाचार की नदी में डुबकी लगाने पर। गौर से सुनिएगा, आजकल भ्रष्टाचार की नदी में डुबकी लगाने के बाद जिसकी छवि स्वच्छ है वही तो मगरमच्छ है, वही तो मगरमच्छ है। अब चुनाव के दिन हमसे कई वादे किए जाते, वैसे ही कुछ वादे इनसे भी किए गए। अब वो पूरे हुए या हमारी तरह अधूरे रहे वो तो हम नहीं जानते, पर आइए एक नजर इनके वादों पर भी डालें। तो कहिए सुनना चाहेंगे? जरूर जरूर हुजूर, स्वागत है। तो सुनिए कि चूहों से कहा गया चील नहीं होगी, चीलों से उनसे कहा गया चूहा सप्लाई में ढील नहीं होगी। मधुमक्खियों से कहा गया भालुओं से होगा तुम्हारा प्रोटेक्शन। मधुमक्खियों से कहा गया भालुओं से होगा तुम्हारा प्रोटेक्शन। और भालुओं से कहा गया मधुमक्खी के हर एक छत्ते पे होगा तुम्हारा ही रिजर्वेशन। हिरणों से कहा गया जंगल के जीवन में अहम सवेरा हो। हिरणों से कहा गया जंगल के जीवन में अहम सवेरा होगा। और हम जैसे उल्लुओं से कहा गया दिन में भी अंधेरा होगा। अब कविता गौर से सुनेगा, समापन की ओर कि उधर झूमते हुए उन्माद में शेर आया अपनी माद में, बोला ओ पूरा जंगल है, माय स्वीट हार्ट शेरनी, आई लव यू। इलू इलू, शेरनी बोली आई लव यू टू, इलू इलू। पर आज तो लग रहे हो कुछ ढीलू ढीलू। शेर बोला ढीलू ढीलू, तो ला एक पेप्सी पी लो। शेरनी बोली पेप्सी तो पिलाऊंगी, उसमें बर्फ भी मिलाऊंगी, पर उससे पहले मुझे भी तो कुछ दिला दो, एक ताजा सा मुलायम सा खरगोश खिला दो। तभी शेरनी के कान में हुआ फुसफुसाहट का सिंहनाद। शेर बोला खरगोश तो खिलाऊंगा डार्लिंग, लेकिन चुनाव के बाद। अब जिनको सुनाकर मैं अपनी कविता को समाप्त करना चाहूंगा
कि ये जितने भी जानवर, चूहा, खरगोश, गिलहरी, ये सभी जानते हैं कि ये जितने भी हिंसक पशु है आग से बड़ा डरते हैं और किसी भी परिस्थिति में आग का सामना नहीं कर सकते। और जिस भी दिन जंगल के जीवन में आग की चेतना वाली एक भी मशाल आ जाएगी, उस दिन सच कहता हूँ इस जंगल की नियामत बदल जाएगी। उस दिन इस जंगल की नियामत बदल जाएगी। सच चक्रधर जी, आज तो बिल्कुल मजा आ गया। आगे देखते हैं किसकी बारी है। सुंदरता का रूप हो तुम, बस यह कह बहलाया है। गृह स्वामिनी का नाम दिया, चूल्हा चौका करवाया है। लेकिन मेरा मानना तो यह है कि आदमी को औरत की ताकत का अंदाजा उसी वक्त लगा लेना चाहिए कि वो उसे लेने के लिए पूरी बारात लेके जाता है, लेकिन वो शेरनी अकेले ही चली आती है। नारी इस शब्द में इतनी ऊर्जा है कि इसका उच्चारण ही मन मस्तिष्क को झंकृत कर देता है। नारी न केवल मानव वरन मानवता की भी जन्मदात्री है। प्रकृति के रूप में समस्त सृष्टि ही मानव नारी रूपा है। इसी नारी के ओजस्वी रूप की साकार प्रतिमा कवित्री प्रियंका राय अर्थात अदिति सोनी हमारे मध्य उपस्थित हैं। अब मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आए और स्त्री शिक्षा के सजग प्रहरी इस मोदी संस्थान में अपनी स्वर लहरी बिखेरें। धन्यवाद भाई कुमार। पुनः आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करते हुए अपने परिचय की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी, गौर कीजिएगा। मैं पावन तमसा की बेटी, पसने को बनारस घाट मिला है, अहो भाग्य मेरा, मुझको इस अवधपुरी का ठाट मिला। मैं वाल्मीकि का प्रथम चंद, गंगा की अमिट कहानी हूँ। है गर्व मुझे, अति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। तन घाट बनारस के जैसा, मन पावन तमसा काजल है। अधरों पर डमरू का निनाद, आंखों में हया का काजल है। मैं भाव बुद्ध सा लिए हुए कबीरा की अमृत बानी हूँ। है शौर्य जहां पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी। है शौर्य जहां पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी हूँ। है शौर्य जहां पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी हूँ। अगली पंक्तियां समर्पित करती हूँ अपने कवि भाइयों को, सुनिएगा। कि निज मातृभूमि की जो बातें यदि आ गई तो चूड़ियों में अपनी रवानी लिख दूंगी मैं। नारी अस्मिता की आन बान और शान लिए हाना रानी जैसी स्वाभिमानी लिख दूंगी मैं। राज धर्मता को मान कर दे जो पुत्र दान, पन्ना धाय माई की कहानी लिख दूंगी मैं। एक शब्द में यदि कहो जो शौर्य लिखने को, झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। अब देखिएगा, जब श्रृंगार और अंगार का मिश्रण होता है तो क्या भाव उत्पन्न होते हैं। सत्य सनातन इस दुनिया की सतत पुजारी हूँ। सत्य सनातन इस दुनिया की सतत पुजारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। वेद रचाए लिखने वाली घोषा और अपाला हूँ। माता दुर्गा काली लक्ष्मी आदि सुंदरी बाला हूँ। वेद रचाए लिखने वाली घोषा और अपाला हूँ। माता दुर्गा काली लक्ष्मी आदि सुंदरी बाला हूँ। विस्मित हुआ देख जो अकबर, वो चिंगारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। कैसे बना अपना भारतवर्ष, सुनिएगा मान्यवर। शकुंतला ने जन्म दिया फिर भारत देश महान हुआ। तारा ने जब आंचल फाड़ा द्रवित पूरा शमशान हुआ। शकुंतला ने भरत जना फिर भारत देश महान हुआ। तारा ने जब आंचल फाड़ा द्रवित पूरा शमशान हुआ। जिद पर जब अड़ जाऊं तो यमराज पर भारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। धर्म रक्ष हित मात कई सी हठ धर्मी हूँ। पतिव्रह को हंसकर सहने वाली उर्मी हूँ। धर्म रक्ष हित मात कई सी हठ धर्मी हूँ। पतिव्रह को हंसकर सहने वाली उर्मी हूँ।
14 वर्ष जो वन में बिता दे वो सुकुमारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। तीनों लोक के स्वामी को राधा ने नाच नचाया, एक द्रौपदी के अपमान ने महाभारत रचाया। तीनों लोक के स्वामी को राधा ने नाच नचाया, एक द्रौपदी के अपमान ने महाभारत रचाया। पति संग जो नेत्रहीन हुई वो गांधारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। यशोधरा ने गौतम जी को बुद्ध बना डाला, कालिदास जड़ बुद्धि को प्रबुद्ध बना डाला। यशोधरा ने गौतम जी को बुद्ध बना डाला, कालिदास जड़ बुद्धि को प्रबुद्ध बना डाला। रामचरित तुलसी ने रच दी जब फटकारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। यह पंक्तियां मुझे सर्वाधिक प्रिय है। सुनिएगा कि बेगम हजरत महल चुनम्मा मैं रजिया सुल्तान हूँ। बेगम हजरत महल चुनम्मा मैं रजिया सुल्तान हूँ। दीपदान कर देने वाली पन्ना धाय महान हूँ। बेगम हजरत महल चुनम्मा मैं रजिया सुल्तान हूँ। दीपदान कर देने वाली पन्ना धाय महान हूँ। तब तक पुत्र बांध कर करती घुड़सवारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। सभी क्षेत्र में आज बराबर का मेरा अधिकार है। नारी नहीं किसी से कम माना ये संसार है। सभी क्षेत्र में आज बराबर का मेरा अधिकार है। नारी नहीं किसी से कम माना ये संसार। बनकर मेरी काम चुनौती को स्वीकारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। सत्य सनातन इस दुनिया की सतत पुजारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। धन्यवाद। वाचन में कोई अशुद्धि हो गई हो तो हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद। गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्रीय संघ के मंच से हिंदी का जयकार। हिंदी का जयकार हिंदी हिंदी में बोला, देख सब भाषा प्रेम विश्व अचरज से डोला। कह कैदी कबीराय नेम की माया टूटी, भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी। नारी के सुंदरतम रूप की इस काव्यमयी वंदना के बाद कलम के जादूगर शब्दों के धनी अपनी कविताओं से दुनिया का रुख हिंदी की ओर मोड़ देने वाले युवा दिलों की धड़कन कवि कुमार विश्वास अर्थात कुमारी आयुषी सोनी, जो इतनी कुशलता से अब तक मन संचालन कर रही हैं, उनका कविता पाठ अभी शेष है। तो अगली प्रस्तुति के लिए मंच पर डॉक्टर कुमार विश्वास, जिनकी कविता शेष भी है और विशेष भी। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अनंत संभावनाओं वाले दिशा नियामक इस पीढ़ी के एकमात्र ISO 2006 कवि श्री कुमार विश्वास का। धन्यवाद मुरादाबादी जी। आज हिंदी का सबसे छोटा सबसे लाडला बेटा इस मंच पर है और वह इस मंच से पूरे विश्व को ये बताना चाहता है कि हिंदी एक उपेक्षिता नहीं है। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है, हम सबकी अभिलाषा है। हिंदी को उपेक्षित मानने वाले अपने सभी साथियों से बस इतना ही कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ गया है, तुमको सूचित हो, विजय का पथ सुपथ पर चढ़ गया है, तुमको सूचित हो। अवाचित पत्र मेरे जो कभी खोले नहीं तुमने, अवाचित पत्र बिना पढ़े हुए पत्र, अवाचित पत्र मेरे जो कभी खोले नहीं तुमने, समूचा विश्व उसको पढ़ रहा है, तुमको सूचित हो कि अकल्पित साधना आकाश पर है, तुमको सूचित हो कि अकिंचन भावना अवकाश पर है, तुमको सूचित हो। विश्वास को अकिंचन मानने वाले मेरे सभी साथियों को ये कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए कि अकल्पित साधना आकाश पर है, तुमको सूचित हो।
अकिंचन भावना अवकाश पर है तुमको सूचित हो। सरस ऋतु चक्र के स्वामी भुवन मोहन कन्हैया की, सरस ऋतु चक्र के स्वामी भुवन मोहन कन्हैया की। सलोनी दृष्टि इस विश्वास पर है तुमको सूचित हो कि नवल होकर पुराना जा रहा है तुमको सूचित हो, कि नवल होकर पुराना जा रहा है तुमको सूचित हो। पुनः यौवन सुहाना आ रहा है तुमको सूचित हो। जिन्हें सुनकर कभी तुमने कहा था मौन हो जाओ, क्या गाते रहते सारे दिन भर। जिन्हें सुनकर कभी तुमने कहा था मौन हो जाओ, वो धन सारा जमाना गा रहा है तुमको सूचित हो। कि समर जो शेष था वो जय हुआ है तुमको सूचित हो, कि समर जो शेष था वो जय हुआ है तुमको सूचित हो। समय का तेज मुझ में लय हुआ है तुमको सूचित हो। सृजन है अर्थ से वंचित सदा ये सार था जिसका, हिंदी क्या कमाएगी, हिंदी का कवि क्या कमाएगा। सृजन है अर्थ से वंचित सदा ये सार था जिसका, उसी अवधारणा का क्षय हुआ है तुमको सूचित हो। आज मेरी दृष्टि में हिंदी और माँ राधा की स्थिति एक बराबर है। जिस प्रकार माँ राधा जो कि श्री कृष्ण के प्रेम की सबसे बड़ी अधिकारी थी, उन्हीं को प्रेम नहीं मिल पाया, उसी प्रकार हिंदी जो हम हिंदुस्तानियों के प्रेम की सबसे बड़ी अधिकारी है, उसी को प्रेम नहीं मिल पा रहा है। इसी संदर्भ में गीत लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। ये हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहाँ थे अभी यही हो। कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहाँ थे कभी कहीं हो। तुम्हारी राधा को भान है तुम सकल चराचर में हो समाये। एक ही पंक्ति में माँ राधा की पीड़ा को देखिए। तुम्हारी राधा को भान है तुम सकल चराचर में हो समाये। बस एक मेरा है भाग्य मोहन के जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। दोस्तों, ये जो जीवन है इसमें हम रोज एक नया अनुभव मिलता है। अलग अलग लोगों से मिलने का, उन्हें जानने का, समझने का अवसर। इन हर मुलाकात से जुड़ता है हमारे व्यक्तित्व में एक नया अनुभव, जुड़ता है एक नया अंदाज। अभी हाल ही की बात ले लीजिए। एक व्यक्ति ने सामने वाले से कहा, अरे तू तो इतना मूर्ख था, तू इतना शाना कैसे हुआ। तो वो बोला, भाई जी तारे देख देख कर इशारों हुए। एक साथ दूसरों से मिले हुए अनुभवों का पुलंदा आप में किस प्रकार परिवर्तन लाता है, किस प्रकार आपकी सोच बदल जाती है और किस प्रकार आप समझदार बन जाते हैं। कुछ ऐसे ही भावों के साथ प्रस्तुत है मेरा ये गीत आपके सामने। कि इतनी रंग बिरंगी दुनिया दो आंखों में कैसे आए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। आगे आने वाली हर पंक्ति में आपको एक चेहरा याद आएगा। अगर याद आ जाए तो हिंदी को दुआ दीजिएगा, शुभकामनाएं दीजिएगा। कि ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे, ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे, ऐसे चतुर मिले जो मन से सहज सरल भोले भाले थे, ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे। और आगे वाली पंक्ति, लोग कहते हैं हमने ऋषि नहीं देखे, मैं कहता हूं अगर आपने एपीजे अब्दुल कलाम को देखा है तो तपस्वी ऐसे ही होते होंगे, ऋषि ऐसे ही होते होंगे। आगे वाली पंक्ति उन्हीं को समर्पित करता हूं। ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे, ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे, मिले पराएपन से अपने अपनेपन से मिले पराए। आपने कई बार ये देखा होगा कि जीवन में इस बाहरी पराई दुनिया से हमें ऐसे अपने मिल जाते हैं जो जिंदगी भर हमारा साथ नहीं छोड़ते, लेकिन कई बार हमें कुछ अपनों में ही ऐसे पराए मिल जाते हैं
जिन्हें हम कभी पहचान ही नहीं पाते। मिले पराएपन से अपने, अपनेपन से मिले पराए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए, एक कंठ से कैसे गाए, एक कंठ से कैसे गाए। शुक्रिया। भाई वाह कुमार, आपने तो जैसे ही जीवन की वास्तविकता से रूबरू करवा दिया हो। संबंधों को, अनुबंधों को परिभाषाएं देनी होंगी, होठों के संग नैनों को कुछ भाषाएं देनी होंगी, हर विवश आंख के आंसू को यूं ही हंस हंस पीना होगा। मैं कवि हूं, जब तक पीड़ा है तब तक मुझको जीना होगा। इसी के साथ हमारी काव्यांजलि अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंच चुकी है। इसके पूर्ण समापन से पूर्व यदि हमारी परामर्शदाता आदरणीय प्राचार्य महोदया का संबोधन ना हो, उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद ना हो, तो शायद आज का हमारा ये उत्सव अधूरा रह जाएगा। अतः मैं अपनी प्राचार्य श्रीमती निशी राणा जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे आए और अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। जी मैडम। रात रात भर जब आशा का दीप मचलता है, तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। सभी अभिभावक गण, अध्यापक वृंद एवं मेरी प्रिय छात्राओं, नमस्कार। आज का यह कार्यक्रम देखकर मैं भाव विभोर हो उठी हूं और शायद इसीलिए आज मैं भी आपसे आप ही की इस काव्यात्मक भाषा में बात करना चाह रही हूं। निसंदेह मोदी विद्यालय की छात्राएं अनंत संभावनाओं से भरी, ओजस्वी एवं आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। इतनी जीवंत, सुंदर एवं भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए निश्चय ही आप सभी बधाई एवं आशीर्वाद की अधिकारिणी हैं। अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने के लिए इस प्रकार के आयोजन सर्जनात्मक जयघोष के लिए समर्पित साधनाएं सदैव ही दिखावटी प्रयासों से अधिक असरदार होती हैं। आपके इस कार्यक्रम ने यह प्रमाणित कर दिया है कि भाषाएं और माताएं शामियानों से नहीं, बेटे बेटियों से बड़ी बनती हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों पर आपका समान अधिकार है। आप अपने देश की उन्नति एवं अपनी संस्कृति के संरक्षण व उन्नयन का दायित्व अब आप पर ही है। शाबाश, बधाई, साधुवाद। एक बार पुनः आप सभी को वसंत पंचमी के पावन पर्व की अशेष अनंत शुभकामनाएं। चलो आज मुश्किलों को हराते हैं, आओ आज हम दिन भर मुस्कुराते हैं। धन्यवाद महोदया। निश्चित ही आपके आशीर्वचन हमारा मार्गदर्शन करेंगे। Now, as we draw close to the culmination of the program, it becomes quite imperative to extend our heartiest gratitude for the success of the program. Therefore, I invite Vanchika Soni, Cultural Head, Moody School, to propose the vote of thanks. It seems that because of technical issues, she's not able to join. I therefore propose the vote of thanks. To give thanks in solitude is enough. Thanksgiving has wings and goes where it must go. Your prayer knows much more about it than you do. Well said by Victor Hugo. A warm namaskar to Honorable Principal, Ms. Nishi Rana, our teachers, parents, and my dear friends, and everyone gathered here. Today, I, Ayushi Soni, take the opportunity to put all my gratitude into words. It's my privilege to propose the vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make the celebration of Vasant Panchami and venerating the goddess Saraswati, supreme deity of knowledge and learning. I, on behalf of the entire school fraternity, first of all extend my most sincere thank you to Almighty God for making today's event a resounding success. With His blessings and grace, we were able to effectively organize this event.
I also extend thanks to all the staff members for their enormous cooperation for bringing the function together in this wonderful manner. An event like this requires planning and taking care of minute details. We have been fortunate enough to be backed by a team of very proactive and dedicated staff and students who put in a lot of practice to attain perfection. I would also like to thank the people who worked behind the scenes to make this event happen. Our technical team has always lent its full support on all occasions, and this time was no different. I will fail in my duty if I do not thank the masters of the ceremony today, the Hindi department, for being such good event managers. My sincere gratitude goes to all parents and well-wishers for their rock-solid support system and encouragement. Without your support, the children would not be able to achieve excellence. Lastly, I would like to thank our building artists who made this joyful event possible with their impressive performances. Your days of hard work were evident in your several presentations. Once again, thank you so much for connecting with us and gracing this event with your benign presence. Thank you. धन्यवाद, शुक्रिया, विदा।